Hello student, welcome once again in my YouTube channel. Uh, as I have told you that in my previous videos I told you that when you start speaking English, it is not necessary that you must know grammar, right? With the help of some famous structures of English, like as far as I know, that is different matter, uh, I want to go, I have this, like these the practice these small structures and try to use them in your daily conversation. ठीक है? I have told you one more technique, that you have to speak in your mind, so that you don't need to translate your sentences. What happens whenever you talk to someone? First you think that sentence in Hindi in your mind, and then you translate it, and then you speak, and it becomes very late also, and it seems to be very awkward. So just leave this habit of translating sentences in your mind. You have to so in order to stop translating, you have to think in English. In my previous videos I have told you how you can think in English, and I gave you some examples also. Now in this video, so and I also told you that first of all you have to remove your hesitation. Don't hesitate to speak, whether you are speaking right or you are speaking wrong. One day you will speak very correct, with grammar, with right pronunciation, but this is your first step in this long journey of learning new language. You have taken your first step, so don't bother about the mistakes. Feel confident, be brave, be bold, and practice, 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 because to learn a language is to speak it. जब आप किसी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको उसमें प्रैक्टिस करना या उसको बोलना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगी, राइट? सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस, जो मैंने जिस तरह से प्रैक्टिस शुरू की थी, हाउ आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, व्हाट आई यूज्ड टू डू, द डेली सेंटेंसेस. देयर इज़ वन थिंग, स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स अभी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसको हमको कैसे बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज़ इन द किचन, माई फादर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, माई सिस्टर इज़ प्लेइंग वीडियो गेम ऑन लैपटॉप, my brother is playing on the terrace, right? My bicycle is there outside the room. What I am doing right now, I am making my videos. So these are the sentences of state of being. ठीक है ना, प्रेजेंट में. अब आपने ये सेंटेंसेस बोल लिए हैं, अब आपको धीरे धीरे इनको बढ़ाना है. बढ़ाना है इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल यू टोल्ड दैट माई मदर इज इन द किचन. अब आप इसको बढ़ाइए धीरे धीरे. कैसे बढ़ाएंगे? माई मदर इज इन द किचन एंड शी इज कुकिंग फूड फॉर अस. माई ब्रदर इज विथ हिज फ्रेंड ऑन द टेरेस प्लेइंग और फ्लाइंग काइट. बढ़ा दिया इस सेंटेंस को. माई सिस्टर इज प्लेइंग गेम ऑन लैपटॉप एज शी हैज़ done her homework and now she is playing game on laptop. ओके, बढ़ा दिया सेंटेंसेस को. अब एक और सेंटेंस क्या था? माई फादर इज वाटरिंग द प्लांट्स. इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, या तो आप नाउन के बाद, नाउन से पहले सेंटेंस में जो भी नाउन आ रहा है उसके पहले आप क्या लगाइए? एडजेक्टिव लगाइए. वर्ब के बाद आप क्या लगा सकते हैं? एडवर्ब लगा सकते हैं. फिर आप बीच में वेल, माई फादर, लाइक दिस आप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं. आप लिंकर्स यूज़ कर सकते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ वाटरिंग प्लांट्स. हाउ विल यू से दैट माई फादर इज़ वाटरिंग प्लांट्स? सो यू कैन इंक्रीज या यू कैन मेक लॉन्ग सेंटेंस यूजिंग दिस बेसिक सेंटेंस. जैसे माई फादर इज़ वाटरिंग प्लांट्स. He has grown many new plants, many decorative plants on terrace, and he has a hobby of growing plants, new plants, and gardening.
and as the plants are all became dry, so he is watering them and he loved doing this work. देखिए मैंने इसको भी बढ़ा दिया. Now I am making videos. ये वाला सेंटेंस था, इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? Well, today I am making my videos, so and I will upload them on my YouTube channel because I want my students to learn English. So I am helping them and I am making daily I am making new videos for them. तो इस तरह से हमने पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले और उसके बाद में हमने उनको क्या किया, हमने उनको धीरे धीरे बढ़ा दिया. सो इन वन डे यू विल नॉट लर्न ऑल दिस प्रैक्टिस, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर practicing daily, if daily you are reading some books or you are listening some English, so definitely some sentences will come in your mind. तो आप ये प्रैक्टिस अपने घर में डेली आप आसपास देखिए और आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं. फिर उनको आप ग्रेजुअली आप उनको बढ़ाइए. एक तो ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अभी प्रेजेंट में जो भी काम चल रहा है उसको हम लोग को कैसे बोलना है. नाउ there is one more state and that is the state of possession, मतलब कि आप क्या possess करते हैं. वो स्टेट ऑफ पोजेशन के लिए हमको कैसे बोलना है. हमको एक तो हैव यूज़ करना है, एक हैज़ यूज़ करना है. कहाँ हैव यूज़ करेंगे? हम हैव वहाँ यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होगा. ठीक है ना. जैसे आई हैव अ पेन, यू हैव अ बुक. अब दे हैव न्यू ड्रेसेस. we have done the homework. ओके, हैव का यूज़ समझ में आया. हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे? थर्ड पर्सन के साथ. थर्ड पर्सन क्या होगा? या तो किसी का नाम होगा या फिर ही और शी होगा. इट के साथ भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे. तो शी हैज़ अ पर्स, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल पर्स, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल न्यू पर्स. Right? Instead of purse you can say wallet also. Wallet. Instead of purse you can say wallet. Then he has 2 badminton sets. Okay. It has been raining. It has been raining since morning. वह सुबह से, आज सुबह से बरसात हो रही है. जब कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता है तो हम इट यूज़ करते हैं. और हम जानवरों के लिए भी इट यूज़ करते हैं. और हम न्यू बॉर्न बेबी जिनका भी हमें जेंडर पता नहीं है उनके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं. लड़कों के लिए हम ही यूज़ करते हैं, लड़कियों के लिए हम शी यूज़ करते हैं. राइट. सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स विच आई हैव टोल्ड यू. Then one thing also I told you, to make stories in your mind, to make fake stories in your mind. Hope you all are doing these practices, and believe me, if you go on practicing daily at least for 5 to 10 minutes, please daily find out the time to practice English, then only you will have a good command over this language. It's not देखिए, जो चीज़ इजीली मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जो चीज़ बहुत डिफ़िकल्टी से मिलती है उसकी बहुत वैल्यू होती है. तो आपको इंग्लिश सीखनी है और आपको ये इतनी आसानी से नहीं आएगी. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. सो आई एम विथ यू. लेट अस टुगेदर मेक अ जर्नी and learn this new language. मैं भी आपके साथ ही सीख रही हूँ. So keep watching my videos, share them if you find them they are useful. Share with your friends, like and subscribe my channel. Thank you very much.